Hi everyone. I hope everyone is doing fine. And today I thought we should be discussing around the topic that why case for being an eternal bull in India, right? So we'll be discussing various aspects why we should be bullish on India, right? Obviously, the journey would not be in a straight line. There would be ups and downs, but in the long term, definitely, those who will be the participants in the equity market in India are going to benefit big time. And today also we have second death anniversary of the late Shri RJ sir, who had been very positive on the equity markets. He had a vision for India and always believed that we as a country will do good, and basis that the participation in the market had rewarded him big time. And market is all about finding the mega trends which will, our thought process should not be short term by any means. Obviously, I'm not discouraging the people who are good at trading or options and futures, but the point of saying this is we need to identify which are the themes, which are the sectors, which are going to do good for a longer of period of time. When I say long period of time, I am talking about the decades, right? So we are very well placed and all the things are aligning. So in those situations, obviously, as RJ sir used to say that markets are never wrong. You have to admit that whatever decisions we take, it should be on our part. Basically, we own our decisions. The idea being a participant in the market is that we should always focus on learning rather than challenging the market. And big money is always made when your thought process aligns with what the market thinks. So behavior is one aspect which is very, very important in the market. And one thing which stands out by all means in the market is clarity of thought. You should be very, very clear and particular about what you are doing until unless you are able to figure out what works for you or what you are doing. क्या लेना है is one aspect which most of the, or rather we can say majority of the participants are after. But क्यों लेना है is a small percentage of people who try to figure out क्यों लेना, right? So that is one aspect which is very, very important, and obviously it's a journey. It's not a one day or one bull market scene, but the participation should be like we should not get out of the market is something which we need to take care. Rest, our learning, and the time in the market will take care of wealth creation. There would be very, very few people who have made good wealth in a very short period of time. It's always that time element has to be by your side. Otherwise, you won't be able to create sizable wealth. And be it business or the market participation, everywhere you need to be very particular that your hard work, which constitutes your focus, your energy, everything should be channelized, and you should be open to learning. And one concept in the markets which is very important is acceptance of rather than saying defeat, but acceptance of things. If you are not good at anything, uh, maybe in relation to the market, be it like fundamental analysis or say technical analysis, in that case you should be either focusing on learning those aspects, and if you are still not able to do that for any reason, be it the majority of your time is occupied owing to your job or maybe any other profession you are in, or you are not able to figure that out, in that case it would be wise on our part that we should
accept the defeat that this particular aspect is something which is not my cup of tea, because that also help us very, very big time, right? Rather than proving the market wrong, we should accept our shortcomings and try to fill the gap, in the sense like, if say you have a humble ticket size, right? So instead of directly venturing into the markets with all the money, having said that, I assume that in such case, if your understanding is limited, if you are very well versed or have spent considerable times across the cycles in the market, so that is altogether a different case. But in general, because when the market is conducive, everybody is after it, right? So the idea of saying this is like, this is your ticket size. There is no harm if you spend 0.5 or 1% or maybe maximum to 1.52% of your capital with some good advisors, right? Who have proven track record, and they can guide you how you can start. Because see, buying is the easiest decision in the market. That's thing which we majority of us struggle with is selling. And obviously there is no right way to sell, but again, more or less, if you are working with a professional or something, a guide who may or may not be a professional but have uh, big experience in the market in individual capacity, right? So in such cases, your decisions will be guided by that person, or maybe your study can also help with those decisions. But the present situation of our markets, see, the behavior changes in a jiffy, right? So 2 days after the budget, the budget day, on the next day, things were uncertain, right? And after some point in time, everybody is like, that was a known event, right? Same thing happened with this recent Hindenburg issue, right? So everybody was clueless what they would be doing this time, and when they came, so there would be two sides to it. Somebody was saying that there is something fishy, and majority of the participants were siding the other party. So even if you are neutral in that case, also that event doesn't last for many days, right? 1 or 2 days of here and there is very common in the markets. So long story short, your behavior is very, very important. How you behave decides how you will do going forward. And I also see Sandeep Bhai. So Sandeep Bhai, in case you are free, I would be happy if you join us, and we'll try to figure out some points on why we need to be bullish on India. And obviously, when you speak, you always try to tell things backed by data, or what has some substance behind it. So I'll be sending you a request, so please accept. And for our audience, if you have any questions, so definitely you guys can type in your questions in the comments, or you can send in a speaker request, which I will take after a while. And obviously, the discussion would be on educational point of view, rather than obviously you all join most of the time. There are hardly people who are not aware that we avoid talking about the stocks, but the focus is primarily on the other aspects which are more important rather than the names. As I was saying, कि क्या लेना है is less important, क्यों लेना is more important. Hi Sandeep bhai. Hey Prince, I'm still on my way back to home. No problem, we'll wait for you till the time you reach. Meanwhile, मैं भी थोड़ा जो इधर उधर से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मैं पेलता हूँ जब तक. Anyways, so let me see comments में कुछ आया है. यार अरुण भाई, आई एम नॉट श्योर कि आप मेरे स्पेसेस में फर्स्ट टाइम आए हो या पहले भी रहे हो. आप स्पेसिफिक कंपनी के बारे में पूछ रहे हो, तो
मैं आपको थोड़ा निराश करूंगा, नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट कंपनीज। आई मीन ऐसा नहीं है, बिजनेस के बारे में एक आध बार स्पेसेस में बात हुई है, बट ऐसे यार लेना है नहीं लेना है, बेचना है, यार आपका पैसा है, आपको करना है, हम कैसे बताएं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग देखो, मेजोरिटी के साथ दिक्कत क्या होती है, आई मीन पास्ट में मेरे साथ भी हुआ था, तो अ, खरीदने बेचने को लेके होता है कि भाई, सो व्हेन यू लाइक समथिंग राइट, तो उस केस में आपने लिया एक आध, अपने फ्रेंड फैमिली को आपने दिलवा दिया, ठीक है, और उस बात को कुछ टाइम हो गया, आपको भी ध्यान नहीं है कि मैंने किसी को बताया था या नहीं बताया था, राइट। और हुआ ये कि भाई उसमें मतलब जब तक अच्छा चल रहा था तो तब तक ऑब्वियसली हम चीजों को एंजॉय करते हैं और बताते नहीं है। थोड़ा बहुत उसमें हल्का फुल्का करेक्शन जो कि मार्केट का टेक्सचर है और जरूरी भी होता है, वो आ गया, तो उसके बाद वो बंदा या जिसको भी बताया तो वो रीच आउट करता है कि अब क्या करना चाहिए। तो मतलब थोड़ा इसमें मतलब जो पॉइंट मैं यहाँ पे ड्राइव करना चाहता हूँ, ठीक है, आपने कुछ खरीदा बेचा, आपने एडवाइजरी के थ्रू किया या किसी इंडिविजुअल के थ्रू किया या अपने से किया, तो बेसिकली कोशिश करो यार, थोड़ा थोड़ा मतलब हाइजीन चेक तो एटलीस्ट आप कर सकते हो, कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग आप नहीं कर सकते, तो बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पे आप कंपनीज, ऑल दो कुछ ट्विटर हैंडल इतने अच्छे से, एक मेरे को जो अभी ध्यान आ रहा है, श्रीनिधि पी, तो ही every quarterly result he share about majority of the companies which declare their result, और उसमें एक थोड़ा उसको मतलब समराइज भी कर देते हैं कि भाई रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वन ऑफ्स हैं इसमें, या जेन्युइनली जो रिजल्ट है वो अच्छा है, जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑल है। तो बहुत सारे मतलब आपके पास मीडियम्स हैं, इवन स्क्रीनर पे भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली जो जो आपके पोर्टफोलियो कंपनीज हैं उसको तो एटलीस्ट अनटिलनेस आपने कुछ ऐसा बकेट बना रखा है कि जिसमें 50 60 70 नाम हैं, तो वो तो अलग बात हो जाती है, बट इफ यू आर समवेयर बिटवीन 10 20 नेम्स, तो उस केस में तो आप 2 दिन मार्केट हफ्ते में बंद रहती है वीकेंड पे, तो डेफिनेटली यू कैन पिक वन बाय वन द स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, और उनका देख सकते हो कि भाई पिछले क्वार्टर का क्या रहा था, अभी क्या चल रहा है, रिजल्ट कब आना है, जो गाइडेंस है। और आजकल तो कॉन कॉल की समरी भी मिल जाती है। आई नो नॉट एवरीबडी हैज दैट मच टाइम और पेशेंस टू गो थ्रू ऑल द कॉन कॉल्स और द प्रेजेंटेशंस, राइट। बट उसमें भी मेजोरिटी आप बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं। वन वेरी गुड टेलीग्राम ग्रुप इज रिसर्च रिपोर्ट बाय शेखर लर्निंग 11 के नाम से हैंडल है, तो वो भी बहुत सारी रिपोर्ट्स वहाँ पे या बहुत सारी अपडेट्स कंपनी के रिजल्ट या एजुकेशनल फ्रंट पे शेयर करते रहते हैं, जिनको आप एक गो थ्रू करोगे तो उसमें जरूरी नहीं है कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ कंपनी बीइंग शेयर्ड ओवर देयर, बट उसमें से आपको जो फिगर आउट करने वाली बात ये है कि एटलीस्ट जो आपकी पोर्टफोलियो कंपनीज हैं उस पे क्या गाइडेंस आ रही है। और पीछे संदीप भाई से हम डिस्कस भी कर रहे थे, जो रिसर्च रिपोर्ट आती है उसमें आप मेजोरिटी ऑफ रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें बाय साइड पे ज्यादा आपकी रिपोर्ट्स आती है रादर देन सेल रिपोर्ट्स, राइट। और उसकी रीजनिंग भी करी थी, वो एक सेशन रिकॉर्डेड है, डेफिनेटली आप अगर आपने सुना नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीडेंटल इन्वेस्टर प्रिंस पे आप 100% उसको सुन सकते हो, और दैट इज वेरी रेलेवेंट। तो रिपोर्ट्स के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, बेसिकली मान लो आपकी कंपनी की रिपोर्ट्स आई हुई है तो आप उसको गो थ्रू करोगे, ज्यादा नहीं होती है, एक दो तीन, और ज्यादा एक्सटेंसिव होती है, 4 5 पेज से ज्यादा मैंने नहीं देखी रिपोर्ट्स जो नॉर्मल होती है, अनटिलनेस इट्स वेरी एग्जॉस्टिव, राइट। तो उसमें आप देखते हो, या कई बार सेक्टर व्यू के साथ इंडिविजुअल कंपनीज का भी बताया होता है, उसमें वैल्यूएशन वगैरह का भी व्यू होता है। तो मतलब यू शुड नॉट गो ब्लाइंडली व्हाट दे हैव रिटन, बट उसमें आप अगर उसको गो थ्रू करोगे ना, तो उसकी रीजनिंग और जो अगर रिजल्ट आने के बाद रिपोर्ट आई तो गाइडेंस वगैरह का एनालिसिस करते हैं, तो उसमें आप एक हाइजीन चेक अपने एंड पे कर सकते हो। उससे होगा ये कि आपको थोड़ा एक ये डिसीजन लेने में इजी होगा कि भाई अभी आपको होल्ड करना है, सेल करना है, या एवरेज अप करना है, तो इस तरीके के जो एस्पेक्ट हैं वो थोड़ा उस पे हेल्प हो जाती है।
और दूसरा, जिनकी कैपिटल छोटी है उनसे, सिंसियरली छोटी से मतलब मैं भी उसी का पार्ट हूँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि यार मतलब पोर्टफोलियो का जू मत बनाओ, कोशिश करो कि द नंबर ऑफ कंपनीज शुड बी लेस। और उस पे दो फायदे होंगे, एक तो ये होगा कि आप एलोकेशन अच्छे से कर पाएंगे, और जो दूसरा आपको बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जहां आप 20 30 50 कंपनी में ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे एक बारी में, तो ऐसा होता है कि आपसे पूछें कि कौन सी कंपनी आप होल्ड कर रहे हो, तो आई डाउट कि एक बार में सारा वो नाम भी बता पाते हैं। तो वो वाला एस्पेक्ट भी उसमें कवर हो जाता है कि आप कंपनीज का जो काउंट है उसको कम रखो। और शुरू में इट इज ऑलवेज वाइज कि ये जो बहुत हैंकी पैंकी नेम्स या जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जिनका हाइप हो रहा है, अनटिल अनलेस बिल्कुल आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे उठाया, तो उन कंपनी से थोड़ा बचोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। और ऑब्वियसली रिस्क रिवार्ड तो थोड़ा डिफाइन करने वाली बात, ऐसा नहीं है कि भाई छोटी कंपनी है तो वहां पे रिस्क रिवार्ड उसी प्रोपोर्शन में होता है। रिस्क दो तरीके के रहते हैं बेसिकली, कि भाई एक तो आपको जो नॉन रिस्क है जो आप चीज फाइंड आउट, और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो अननोन रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसा भी कुछ मत करो कि कंसंट्रेटेड के नाम पे कि भाई आपने सारा सब कुछ एक ही जगह लगा दिया और कुछ उल्टा हो गया तो मार्केट से ही बाहर हो गए। तो वो बैलेंस भी जरूरी है। और एक बहुत अच्छा, पता नहीं आप लोगों ने अभी सुना है कि नहीं सुना है, केदार बी सर के साथ मेरा एक सेशन हुआ था, जो कि फाउंडर हैं कॉन्ग्रुएंस एडवाइजर्स के। तो उनके साथ डाइवर्सिफिकेशन, देखो नॉर्मल एस्पेक्ट में तो बहुत सारे सेशंस में डिस्कस हुआ है, बट जो एस्पेक्ट उस सेशन में कवर हुए हैं, तो ट्रस्ट मी, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट सेशन ऑन डाइवर्सिफिकेशन। और अभी मुझे उसका अगर लिंक मिलता है तो डेफिनेटली आई विल पिन हेयर। और आई वुड रिक्वेस्ट, कल भी, ऑल्दो टुमारो इज अ हॉलीडे फॉर मेजोरिटी ऑफ अस, तो उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं अगर और कोई प्लान्स नहीं है तो। अदरवाइज वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड पे तो एटलीस्ट वी ऑल कैन सी दैट वीडियो। उसका फायदा सबसे ये होगा कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट और न्यूएंसेस हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं, और उसके चलते जो अपने डिसीजन है वो डिसीजन मेकिंग थोड़ी पुअर हो जाती है। तो उस फ्रंट पे तो मैंने उसको पिन किया है, तो आप लोग डेफिनेटली उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा और क्या चीजें ध्यान रखनी है, हाँ, तो डाइवर्सिफिकेशन वाला एस्पेक्ट भी हो जाता है। और उसके बाद ये है कि हमारे पास एक प्राइस एंकरिंग कि भाई जिस प्राइस पे आपने स्टॉक को देखा है या जिस प्राइस पॉइंट पे ऐड करा है ना, तो उससे ऊपर अगर प्राइस आ जाता है तो आप हेजिटेट करते हैं कि भाई इसमें और ऐड करना है कि नहीं करना है। देखो मेरा, मतलब मेरा तो क्या मानना है, अगर इसको जनरली मैं निचोड़ निकालूं जो आज तक मैंने सेशन किए हैं, तो मेजोरिटी ऑफ जो अच्छे फाइनेंशियल मार्केट प्रैक्टिशनर्स हैं उनका कहना ये होता है कि वेन एवर यू आर डिप्लॉइंग फ्रेश मनी, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आप, दैट वुड बी मोर और लेस इक्विवेलेंट टू फ्रेश बाइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, इवन इफ यू ऑलरेडी होल्ड दैट, राइट। कि भाई कोई पोजीशन आपकी से 100 रुपए पे है किसी XYZ कंपनी में, और 150 रुपए पे भी वो आपको अच्छा लग रहा है, तो इट शुड बी कंसिडर्ड। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको 100 रुपए के प्राइस के साथ एंकर करके देख रहे हैं। रादर देन दैट यू शुड बी लाइक थिंकिंग इन दैट वेज कि भाई ये 150 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आप फ्रेश एंट्री कर रहे हो। उससे होता क्या है, क्योंकि आप देखो एवरेजिंग डाउन तो सारे ही करते हैं, सबको अच्छा लगता है कि भाई मैंने इतने पे लिया है और नीचे चला गया। उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें डिटियोरेट हुई होती हैं और पता नहीं लगता है, तो उस केस में यू आर थ्रोइंग योर गुड मनी आफ्टर दी बैड मनी, राइट। लेकिन एवरेजिंग अप में ये रहता है कि आप पिरामिडिंग करेंगे तो उसमें आपकी एवरेज भी इस हिसाब से रहती है कि आपका क्वेश्चन रहता है, प्लस आपका ये भी रहता है कि भाई चीजें कंपनी में जो गाइडेंस थी या जो जो चीजें आपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखे थे वो मटेरियलाइज हो रहा है, तो आप उस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बने हुए हैं। और हर अच्छे प्राइस पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट पे जहां भी लग रहा है, वो भले ही फाइनेंशियल बेसिस पे हो या टेक्निकल बेसिस पे हो, आप कर रहे हो। उसके अलावा बाकी तो देखो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। अब आगे कितना अच्छा चलेगा वो क्वेश्चन है, बट उस आगे की डेफिनेशन क्या है आपका,
होराइजन डिपेंड करेगा। अगर आपका होराइजन 2-3 साल का है तो मुझे नहीं लगता यहाँ से भी मटीरियली कोई दिक्कत होने वाली है। यहाँ से भी सब अच्छा ही रहेगा। और जो स्विंग ट्रेड्स या इंट्रा डे वगैरह करते हैं तो उनको तो मेरा कोई ऐसा सुझाव नहीं है, बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट राइट पर्सन और कैपेबल पर्सन टू गाइड मोर ऑन दैट। बट यही है यार, देखो जो चीज आप कर रहे हो ना उसमें मास्टरी करोगे तो आप उस चीज को और अच्छे से कर सकते हो। मार्केट में अल्टीमेटली आपको नाम से, स्टाइल से या मल्टी बैगर से या इस चीज से इतना मैटर नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे यू आर हेयर टू मेक मनी। अब पैसा आपका एक्स बनाए, वाई बनाए, जेड बनाए, टेक्निकल बनाए, फंडामेंटल बनाए, वो आपको देखना है। बट हाँ ये है कि सस्टेनेबल पैसा तब बनेगा कि आपकी कोई अच्छी लर्निंग है या कोई आपकी हैंड होल्डिंग अच्छा गाइड या आपका अच्छा एडवाइजर या कोई भी कर रहा है। तो संदीप भाई हे प्रिंस, पहुंच क्या के भाई। टॉपिक है? और मुझे लग हाँ रहा है ये सब लोगों को क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं जैसे ही कोई लीव आती है। तो कल 15 अगस्त है। उसकी बजाय हम लोग मार्केट डिस्कस कर रहे हैं, बट गुड टॉपिक। सो व्हाट आर द पॉइंट्स? आई मीन, व्हाई वुड एनीबडी डिसएग्री विथ योर टॉपिक? बट क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट। प्रिंस, क्या बात हो रही है? आप बताओ मुझे। गिव मी सम सर, क्यू। अभी अभी हाँ, तो प्लेन एंड सिंपल ज्ञान चल रहा है। वी आर वेटिंग फॉर सम गुड पॉइंटर्स फ्रॉम यू, और उस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई पुल यू अप फॉर दोस क्वेश्चंस। क्यों लगता है आपको? और आई मीन नहीं, देखो मैं एवरी बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ गुड पोजिशन टू टॉक, मैंने एक दो ट्वीट मार दी बेस्ड ऑन सम फॉरवर्ड्स आई रिसीव्ड इन लास्ट 1-2 days। ऑब्वियसली स्क्रीन शॉट्स हैं कहीं से। इटर्नल बुल बिल्कुल क्यों नहीं। मतलब इंडिया इंडिया में इटर्नल बुल हो गए तो इसमें कहाँ हो गए? मतलब इसको दो तीन तरीके से समझना है कि इंक्रीमेंटल जीडीपी जो है ना, हम इंडिया का देखिए, पर कैपिटा पे कोई भी डेटा डालेंगे तो सब खराब है, वो एक सच्चाई है। बट इंडिया एज ए कंट्री की बात करेंगे, एज ए होल, एज ए ब्लॉक, तो जो इंक्रीमेंटल जीडीपी है उसमें भी मैंने एक ट्वीट पहले डाली थी। एंड डोंट जज मी ऑन नंबर्स, बट भाव को समझिएगा। कुछ 25-30%, 40% जो डेल्टा जीडीपी में ऐड हो रहा है ना वर्ल्ड में, वो इंडिया से हो रहा है, या कुछ 20% टाइप का नंबर। विच बेसिकली मीन्स कि कोई भी एमएनसी, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो इंडिया में ना रहे। कोई भी ग्लोबल कंपनी जिसका इंडिया प्ले नहीं है, बोथ इंडिया एज ए मार्केट और इंडियन टैलेंट एज ए बैकबोन फॉर a lot of things they do, including IT, एज वेल एज आईटी, तो सबको पता है। और इस कॉल में काफी इंटेलिजेंट लोग भी हैं ट्विटर में। सब कोई एवरेज क्राउड तो बेटर ही होती है कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया, तो सबको पता होगा। बट जस्ट जस्ट फॉर हाईलाइटिंग, जो जीसीसी का कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का, आप बैंगलोर में, हैदराबाद में, एटलीस्ट इन दो जगहों पे, मतलब ऐसा मुझे लगता नहीं है इस समय कि कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी विल नॉट हैव ए जीसीसी इन इंडिया, मे बी मैक्स 2030, and surely from G8 everyone will be there. I'm not counting on names from, let's say, Gulf or China, right? So जो वेस्टर्न ब्लॉक की कोई भी फॉर्च्यून 500 कंपनी होगी, उसका सीईओ अफोर्ड ही नहीं कर सकता है कि वो इंडिया प्ले उसका ना हो। मार्केट में मे नॉट बी देयर, बट श्योरली द पीपल आर देयर। सो दैट्स वन। दूसरा, इसको मैं इस तरीके से देख सकते हैं, तो उसमें से every 6% is an Indian, or maybe 5% is an Indian। अब इंडिया एक चीज है और इंडियन एक और चीज है। इंडिया से भी ज्यादा स्ट्रांग इंडियन है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक इमिग्रेशन होता है उसमें यूजुअली जो प्रोग्रेसिव, या जिनको लाइफ में कुछ करना होता है, क्योंकि चेंज का इनर्शिया बहुत स्ट्रांग होता है। लोग अपना सिटी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिसको शुद्ध हिंदी में बोलें तो रोजगार की तलाश में लोग छोटे सिटीज से मेट्रोज में आते हैं, विद इन इंडिया बैकवर्ड स्टेट से इंडस्ट्रियल स्टेट्स में आते हैं। उसमें भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो इंडिया छोड़ के बाहर आ रही है। अब उसको ब्रेन ड्रेन और वो सब बेसिक वाले टॉपिक्स पे नहीं जाते हैं,
बट आप उस मूवमेंट की स्ट्रेंथ समझिए। अच्छा, कल्चरली भी हम कहीं भी जाते हैं हम एसिमिलेट हो जाते हैं। हम जाएंगे, वहाँ के इथोस, वहाँ की ड्रेसेस, वहाँ का खान पान और वहाँ के इवन रिलीजियस इथोस को हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि जितना इंडियन जितने पावर से क्रिसमस मनाते हैं उतना वेस्टर्न वर्ल्ड भी मनाता है, बिकॉज इट्स नॉट अ जॉयस सेलिब्रेशन। इंडिया में हम बिना शोर शराबे के तो कोई फेस्टिवल मनाते ही नहीं है। तो यूएस में क्रिसमस जितनी बोलेंगे ना स्पीड से या जितना वेलोसिटी से इंडियंस मनाते हैं उतना बाकी, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल। बट एनीवे, सो द पॉइंट इज, पहला इंडिया और दूसरा इंडियन। अब इंडियन की क्यों बात कर रहे हैं? जब हम इंडिया मार्केट की बात कर रहे हैं तो इंडियंस कहाँ से बीच में आ गए? इंडियंस यहाँ से बीच में आ गए कि एक जो हमारा ये 70-80 बिलियन का एनुअल जो इनफ्लो आता है, फॉरेन रेमिटेंसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, पहले वो गल्फ से आता था, अभी वेस्टर्न ब्लॉक से भी आता है। आप इमेजिन करिए, द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंडिया and rest of the countries in SAARC is basically that remittances. In Bangladesh has a sizable remittance frankly, and Pakistan all जितना भी सर्वाइव किया है वो रेमिटेंस पे ही करता है। तो वो एक कांस्टेंट इनफ्लो है। जो हम एफआईआई का नंबर करते हैं हम मिस कर जाते हैं। एफआईआई क्या है? बाहर का एक बंदा जो इंडिया में पैसा लगाया था अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, जा रहा है। बट जो बाहर बैठा हुआ है, बाहर कमा रहा है, मंथली सैलरी सेविंग करके वो इंडिया भेज रहा है, या तो अपने पेरेंट्स को भेज रहा है, या अपने एक्सपेंसेस के लिए कुछ भेज रहा है, या अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए भेज रहा है। तो वो पैसा कंटिन्यूसली आ रहा है, वैसा सोर्स। प्लस गैप इतना बड़ा है। आप अभी जो इंडिया की हमारी पर कैपिटा इनकम है, या जो हमारी प्रोसेसेस का अंदाज है, या जो हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज हैं, वो इतनी पीछे हैं। एक्सेप्ट फॉर द सर्विसेज पार्ट हम सब इतने पीछे हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, कि एक बहुत बड़ा डेल्टा है जिसको सिंपली कवर करते जाना है। तो अगले 15 साल या अगले 10 साल, assuming some level of political continuity or logical switches. So even if political regime changes, it shouldn't be disorderly. Basically, absent any geopolitical or major civil war kind of a situation, it is no-brainer to be bullish on India. The only wish we should have is we do not get carried away, make such a top that some accidents happens even in the market and then people disappear for 5 years. If that doesn't happen, then next 10-15 years में लाइफ डिफाइनिंग वेल्थ बनेगी at multiple levels, at entrepreneurs levels, at a country level, reserves, capabilities, hard assets, soft assets, and then obviously reflection of that will come into the markets. So Prince, that's my take. Obviously, I mean बहुत बड़ा topic है, open ended है, so it is very easy to keep on talking, but I'll still take a pause so that people can ask question and probably we can moderate it a bit. एंड संदीप भाई, जैसे जैसे इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है और एक एक सर्टेन थ्रेशोल्ड आता है जहां पे मतलब मैक्सिमम उस चीज का बेनिफिट मार्केट्स को होता है, तो वो वाले फेज से हम कितना पास या दूर हैं, अगर उस बारे में कुछ थोड़ा व्यू होता आपका। ये काफी बड़ी थीम लास्ट ईयर बहुत गोल्डमैन की एक स्टडी आई थी, काफी ब्रोकर्स कह रहे हैं, एंड इट इज मोर और लेस कंसेंसस ट्रेड है नाउ, विच इज व्हाट वी कॉल एफ्लुएंट इंडिया, राइट? तो आज से जब 15 साल पहले सीके प्रहलाद, फेमस मैनेजमेंट गुरु, he wrote a very famous book which is fortune is at the bottom of pyramid or something like that. Essentially his argument was कि इंडिया को अगर आपको पकड़ना है तो बॉटम अप पकड़ना होगा. So that's where the whole SASE game came, right? कि इंडिया के एफएमसीजी का पेनिट्रेशन करना था तो आपको वो 100 रुपए की बोतल से नहीं हो सकता था, आपको 1 रुपए के सैसे पे ही पहुंचाना था. बट वो फेज उसी, इनफैक्ट सीके प्रहलाद वाज द ब्रेन चाइल्ड और एटलीस्ट द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द नैनो आल्सो. So he nudged Mr. Ratan Tata, and Ratan Tata, obviously it was a failed experiment at many levels. So वो फेज ऑलरेडी हमारा ओवर हो चुका है. तो अगर आप विद इन स्टॉक मार्केट देखोगे तो जो हमारा रोटी कपड़ा मकान या एटलीस्ट जो हमारी हाइजीन नीड्स है उसमें उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है जितनी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स में हो रही है. इवन कैटेगरीज के भी अंदर आप देखोगे तो एफएमसीजी की ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी निकेश या कोई भी गूगल करके करेक्ट कर देना, आई थिंक द राइट वर्ड इज एचएमसीजी और समथिंग, हेल्थ रिलेटेड बेसिकली एफएमसीजी, राइट? सो हर सेगमेंट में जो हायर प्राइस हायर क्वालिटी की चीज है वो सेगमेंट ज्यादा ग्रो कर रहा है. समथिंग एज बेसिक एज ऑटोमोबाइल का डेटा आप कभी भी ग्लोबल करो तो लोग बोलते हैं
दुनिया में 1000 में, यूएस में 1000 में 600 कार है एवरी 1000 पर्सन। इंडिया में कुछ 20-25 टाइप का नंबर होगा। तो एवरी ऑटोमोबाइल एग्जीक्यूटिव यूज टू थिंक यार कुछ करना ही नहीं है इंडिया में, अगले 20 साल तक तो ये धीरे 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 करके 500 हो जाएगा तो भी हमारे ग्रोथ तो हो गया। बट दैट नेवर हैपेंड। If you simply see the volume growth of volume growth, not the price growth, the notional, which is obviously a function of inflation also. Four wheeler, you'll be surprised कि कुछ ग्रोथ ही नहीं हुआ है, इवन जीडीपी लेवल्स भी मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने कंसंट्रेटेड है कि उससे ज्यादा वहां पे कार सिस्टम में डालना पॉसिबल नहीं है। सेम विथ टू व्हीलर ग्रोथ, अगर आप उसकी यूनिट लेवल पे देखोगे हीरो होंडा की 5 साल पहले की और आज की में कोई बहुत ऐसा अंतर नहीं है कि आपको लगेगा कि यार ये ऐसी कोई ग्रोथ आ गई है। तो वो जो बेसिक मोबिलिटी वाले सब सोल्यूशंस वो सब हो गए हैं। जो ग्रोथ आ रही है बिल्कुल नई कैटेगरी, नए सेगमेंट्स में आ रही है। सो इट इज बेसिकली प्रीमियमाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं कि वो 2500 टू 2,500 डॉलर पर कैपिटा से जो 5-6 की जर्नी है उस पर जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा वो बहुत तगड़ा होता है। और उसका भी बहुत सिंपल सी एनालिसिस है प्रिंस। सो बेसिकली डिस्क्रिशनरी वर्सेस नॉन डिस्क्रिशनरी बोल लीजिए, या जो मस्ट वर्सेस दिस थिंग। तो जब एक गरीब आदमी है वो महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है तो उसके फूड, शेल्टर, क्लोथिंग मिला करके 6-7-8 हज़ार रुपए चला जाएगा, या एक सम नंबर। आई मीन यू प्रॉब्ली अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ इट। बट एक रिच बंदा है, उसके भले ही वो ज्यादा महंगी जगह पे खा रहा है वो है, तो भी ये सो कॉल्ड नीड्स का खर्चा कैन नॉट बी मोर देन 10-15-20% ऑफ हिज इनकम, राइट। और जो हमारे सेविंग लेवल्स हैं वो 30% काफी ज्यादा है। I mean, it used to be 35 or something. I think it will be more higher 20s now. So we still save a lot, right? And that is exactly what is happening right now. We are basically displacing institutions, primarily foreign institutions. So जैसे जैसे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है वो सारे के सारे हम पुश कर रहे हैं। FIIs को बाहर निकाल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को बाहर निकाल रहे हैं, प्रमोटर्स को बाहर निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट को बाहर निकाल रहे हैं, और पब्लिक ओनरशिप बढ़ती जा रही है वाया म्यूचुअल फंड और रिटेल। सो बट टू योर स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन, यस, सारे आप कैटेगरी बाई कैटेगरी आप जाके दिखाइए। हार्ड जो गवर्नमेंट ड्रिवन कैपेक्स है उसकी बात अलग है, ठीक है। वो तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है और उसने एक हार्ड टारगेट बना रखे हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तभी नेक्स्ट लेवल की एनेबलर्स आएंगे, ठीक है। सो दैट्स मोर लाइक ए डन डिसीजन, चाइना स्टाइल और सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी जिसको बोलते हैं ना, प्लान्ड इकोनॉमी एक्सपेंडिचर्स। सो व्हाट हैपेंस इन रशिया और चाइना। बट जो जहां पे डिस्क्रिशनरी है, कंज्यूमर है, वहां पे आप देखना बार बार प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ग्रोथ बहुत तगड़ी है, और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो मोर और लेस स्टैग्नेट हो चुके हैं। मतलब नॉमिनल ग्रोथ चलती रहेगी बट नथिंग लाइक अ माउथ वाटरिंग ग्रोथ। सो मारिको नंबर उठा लीजिए, डाबर उठा लीजिए, या टू व्हीलर्स की वॉल्यूम्स उठा लीजिए, आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा इंडिया में। बैक टू यू प्रिंस। तो संदीप, इसमें एक चीज और, जैसे अगर इसको हम यूएस पार्लेंस में कंपेयर करें इंडिया का, कि जो अभी रिटेल पार्टिसिपेशन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन मेजॉरिटी, वो उस लेवल तक जाने में कितना पीरियड लगा था, और उस जर्नी में अगर कोई डेटा भी नहीं हो तो रफली कुछ ऐसा आइडिया कि कितनी वेल्थ क्रिएशन हुई है उस पीरियड में, अगर जो मान लो जब वी आर एट 4-5% और मे बी सम मोर देन दैट, और मूविंग टू 30-40-50% ऑफ दैट नंबर, हाउ ह्यूज इट कैन बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूएस में हुआ है उसको हम ये मान ले कि इंडिया में हो जाएगा, दिस इज अ गुड एजम्पशन, बट दैट डजंट मीन इट विल हैपन, राइट। तो लाइफ में, कंट्रीज की जिंदगी में, सोसाइटीज की स्पैन में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, बट बिकॉज दोज आर नोन अननोन अननोन, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। बट व्हाट हैपेंड इन यूएस वाज बेसिकली 401k बोलते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू ईपीएफओ। उस रेवोल्यूशन के बाद सिस्टमैटिकली एक डिसेंट पोर्शन इक्विटीज में जाने लगा। और दूसरा, आप सब लोगों को पता ही होगा कि वहां पे पैसिव फंड्स बहुत तगड़े हैं। वहां पे मंथली सिप बेसिकली लोगों ने S&P 500, नैस्डैक और रसेल के ईटीएफ्स पे डाल रखा है, विच इज इक्विवेलेंट टू लेट्स से निफ्टी ईटीएफ और मिड कैप ईटीएफ एक्सेट्रा। और वहां पे मिस्टर बॉगले, इनफैक्ट प्रिंस, अभी तो मैं 2 वीक ट्रैवल करूंगा, समटाइम लेट्स डू ऑल्सो अ गुड session on passive investing or the history of passive investing, how Mr. Vanguard basically did what it did in USA and how it displaced likes of Fidelity etc. But coming to वो चीज कम से कम 25-30 साल में हुई है प्रिंस,
और इंडिया का जो एक फनी डेटा है कि हमारा जो पीक इक्विटी पार्टिसिपेशन था 93 का, दैट वी नेवर रीच्ड टिल 2008, एंड देन फिर से वो ठंडा हो गया था, अभी फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यूएस का तो छोड़ो, मतलब आधे में भी यूएस की 45% पैसा इक्विटी में जाता है, हमारा वो कुछ वो 10-12% होगा, या समवेयर अराउंड दैट नंबर। यहाँ से 45 शायद हम कभी भी ना पहुंचे, और अगर 25 भी पहुंचना होगा तो कम से कम 10-12 साल लगेगा। इट कांट बी डन इन 3 years। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सिस्टम्स रेडी नहीं होते हैं। जैसे ये जो पूरी नॉइज थी कि डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट और इंडियन फाइनेंशियल सेटअप को एक आदत पड़ चुकी थी। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा निम हमारे यहाँ है, एज ए परसेंटेज एब्सोल्यूट ऑल्सो, ऑन अ रिलेटिव बेसिस ऑल्सो। तो हमारी बैंकिंग सिस्टम का निम रफली 3.5-4% है, जिसको हाई लेवल पे आप ऐसे समझ सकते हो कि वो हमसे पैसे लेते हैं 7 रुपए में या 6 रुपए में या 5% पे, और उनको हमको ऑन एन एवरेज वो 8-9% देते हैं, पे लोन देते हैं। उसमें भी कॉर्पोरेट को 8-9 पे मिलता है, पब्लिक को तो 10 पे मिलता है होम लोन, और थोड़ी भी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है और पर्सनल अनसिक्योर्ड ले रहा है तो 12-15, और जो बिल्कुल बेचारा गरीब है तो उसको माइक्रो फाइनेंस के नाम पे 22%, और जो फाइनेंशियली इलिटरेट है उसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू 40%, राइट? सो दैट्स हाउ बजाज फाइनेंस हैज अ 6-7% काइंड ऑफ निम। ये दुनिया में कहीं नहीं है प्रिंस, मतलब राइट। इस लेवल के निम कहीं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ फाइनेंशियलाइजेशन हुआ ही नहीं था। तो बैंक को पता है कि यार या तो बंदा रियल एस्टेट डालेगा, या गोल्ड डालेगा, या मरता क्या ना करता वो एफडी डालेगा। जब एफडी डालेगा उसको सिस्टमेटिकली हर महीने सेव करना है और डालना है एफडी में, तो हाउ डज इट मैटर आप कितना भी दे दो कम, राइट? तो एक पूरे सिस्टम को आदत पड़ी हुई है पब्लिक से डम पैसा लेने का। उसमें भी एक लेवल पे जो सबसे ज्यादा मुझे सैडनेस फील होती है वो है कासा पे। लकली रेगुलेशंस ने थोड़ा बहुत चेंज किया लास्ट 10 सालों में। इवन सेविंग अकाउंट्स में अच्छे रेट्स मिलने लगे, 4-5, पहले ये 2% मिलते थे। करंट अकाउंट का तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। आई अंडरस्टैंड बिजनेस के लिए क्यों चाहिए और ये एटसेट्रा एटसेट्रा, भाई आज की डिजिटल डेज पे किसी से पैसा लेकर के 0%, 2% पे लेना जस्ट बिकॉज इज नॉट फाइनेंशियली स्मार्ट। मतलब आप सिंपली पीएसयू बैंक्स की कोई भी रिपोर्ट पढ़ लो, कितने ऑनर के साथ बताते हैं कि एडवे बैंक का कासा रेशियो बहुत अच्छा है, इसलिए उसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। व्हाट डज इट इवन मीन? It basically means it has a vast pool of people who do not have financial literacy to figure out that by putting their money at 4%, 5% lying around, they are basically, shooting on their feet. तो वो हम एज ए कंट्री हमारी इतनी आदत पड़ गई है, अब वो धीरे धीरे चेंज होगी। काफी फाइनेंशियल लिटरेसी आ रही है, बट वो 2 साल में नहीं हो सकता है प्रिंस, 10-15 साल लगेंगे अगर सब कुछ सही चलता रहा। बीच में कभी भी हम अच्छा, ये इंडिया ने बैठ गए तो बैठ गए, फिर क्या है। देखो, बैंक्स के लिए तो जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छे रहेंगे तो क्रेडिट साइकिल अच्छी रहेगी नहीं, मार्केट ये में। कॉन्वोल्यूटेड है प्रिंस। सो दिस इज लिटरली लाइक सेइंग, सॉरी टू straight away counter you here. Purpose of India is not to have financial banks. Good financial banks are needed to have a good India. So that's just a means, that's not the end goal, and there are different ways to do that. तो ये कहना कि फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जितना ज्यादा उनका रिजर्व होगा, जितनी सेफ्टी होगी, उतना इंडिया के लिए सिस्टमैटिक अच्छा है, दैट्स ट्रू। बट दैट्स ए विकेड ना ट्विस्टेड लॉजिक कि आप दूसरी तरफ से कान पकड़ लिए है। बैंक्स कैन ऑलवेज डू ए बेटर जॉब, अपने एक्सपेंस रेशियोज कम करें, कुछ करें। इतना आप दुनिया में किसी भी कंट्री में 35% ऑफ इंडेक्स आपको बैंक्स में नहीं मिलेगा। आप कर लो, यूएस की बात कर रहे हो ना, यूएस में सारा टेक्नोलॉजी है। बैंकिंग क्या बिजनेस है? बैंकिंग इज नथिंग। बैंकिंग इज जस्ट एन एनेबलर, इट्स नॉट एन इंडस्ट्री इन पर से। ऑब्वियसली फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर बोल देते हैं, बट इट डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग, राइट? इट इज इनेबलिंग अदर पार्ट ऑफ इकोनॉमी। So obviously it is very vital, it is needed, but not to the extent or the size or the kind of gross profit system does. And this is net of the all the NPS. ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे निम का तो बहुत एक्सेप्शनली हाई है। तो वो जो लेजीनेस है ना सिस्टम में, दैट विल श्योरली come down at least 30-40% in next 5 to 10 years. That is one reason banks have been not doing so great as many of us, including me. I was missing this particular point that NIM अभी पीक जरूर हुआ है 2 क्वार्टर में, but there is a structural pressure also which will come on these banks as we move in, let's say, next 10 years. Right. Even on the NPA side also, we are seeing कि थोड़ा बहुत अपटिक आ रहा है।
हम्म। ठीक है, बैक टू अदर स्पीकर्स आल्सो प्रिंस, लेट्स नॉट मेक इट अ वन स्पीकर थिंग। कोई और स्पीकर ले लो, उनके भी सो व्यूज ले निकेश, लो। आपका कोई क्वेश्चन हो या बाकी मैं देखता हूँ मीनवाइल कमेंट्स में कुछ ऐसा होता। एक क्वेश्चन है के पॉल का, व्हाट इज योर सजेशन टू प्ले केपेक्स साइकिल ऑफ अ कंपनी, लाइक इफ कंपनी इज डूइंग केपेक्स राइट नाउ बट प्रोडक्शन विल बी स्टार्टेड 2-3 क्वार्टर्स डाउन द लाइन। प्रिंस कोई भी ले सकता है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कोई और स्पीकर है? मैं आई एम हैप्पी टू टेक इट, बट एनीवन एल्स वांट्स टू टेक इट? हर्षुल तो आ आप जाओ, ही, या बाबूलाल जी, केशव, एनीवन। आई एम नॉट सेइंग। बट हाँ, अब देख लो कोई भी स्पीकर पे आ जाए। मैं जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, यस ऑब्वियसली सी कैपेक्स इज द मोस्ट वर्चुअस एक्सपेंस। ऑब्वियसली इट हैज अ रिस्क if it is too leveraged, if it is in a very cyclical kind of industry. तो अगर बैड टाइमिंग है तो those are the also the reasons sometimes companies fail. But all said and done, capex is always a better expenditure than some of these working capital related cash suck up. So अगर कोई कंपनी कैश कैपेक्स कर रही है तो उसका ग्रास ब्लॉक समझने का, उसका पोटेंशियल इंडस्ट्री में किस तरीके के रिटर्न्स आते हैं, उस कंपनी के में क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, और इनफैक्ट मैक्सिमम आप देखोगे तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैपेक्स थीम को बहुत स्ट्रांगली पकड़ते हैं। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल कंपनीज। बिग कंपनीज में यार ऑलरेडी 100 है, इंक्रीमेंटल 15% और कैपेक्स कर दिया, वो आपके लिए गेम चेंजर नहीं है। गेम चेंजर है कि वो कितने बढ़िया से कंपनी रन हो रही है एक्सेट्रा। बट छोटी कंपनियां जहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक 10 करोड़ का था, सडनली 20 करोड़ का उन्होंने कैसे भी फंड रेज करके कैपेक्स मारा है, तो नेचुरली नंबर चेंज हो जाएंगे 9 महीने बाद, 12 महीने बाद। तो कितना फास्ट टर्न अराउंड है कैपेक्स का, उसकी डिमांड इनफ है कि नहीं है। तो इसमें पहले मैं बहुत वरीड रहता था, आई बी वेरी फेयर हियर और ऑनेस्ट हियर, दैट आई यूज्ड टू वरी कि यार पता नहीं फैक्ट्री चलेगी कि नहीं, ये लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो आई वाज ऑलवेज ए फियरफुल इन्वेस्टर, आई एम स्टिल ए वेरी फियरफुल इन्वेस्टर। बट वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड स्पेशली फॉर स्मॉल कंपनीज, कि प्रमोटर को बहुत नब्ज होती है अपने लोकल मार्केट की। वो मार्केट की वजह से कैपेक्स कभी भी नहीं करता है। वो तभी करता है जब उसको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसे पता है कैपेक्स आते हैं तो 1-1.5 साल 2 साल लगेगा। एक बार कर लिया तो वो संकिन मनी है, उसको तोड़ करके लोहा तो बेचोगे नहीं आप। तो वो तभी करता है जब उसको डिमांड मीट करने की एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस होता है। तो 7 or 8 out of 10 times you will realize once capex happens, usually things follow. बट दैट कैन नॉट बी सेड अबाउट लार्ज कंपनीज। लार्ज कंपनीज के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं। अगर इंडस्ट्री साइकिल्स बैड शेप में है तो आप 30-40% पे ऑपरेट करते रहो, क्या दिक्कत है? उसके फाइनेंशियल लेवरेज से ही आप लॉस में आ जाओगे। तो मतलब कुकी कटर आंसर पॉसिबल नहीं है, बट यस, you need to have a different level of expertise to analyze the impact of capex and anticipate it ahead of consensus does. एक बार consensus आ गई तो फिर तो आ ही गई। मतलब प्रिंस, आई टेक माय एग्जांपल, दैट्स द ओनली वन आई हैव गॉट राइट सो फॉर। द एमआरपी 6 महीने पहले सबको बोल रहा था एग्जैक्टली सेम कि ये कैपेक्स हो रहा है, ये हो रहा है, ये होगा, ये होगा। बट देन नो वन वाज रेडी। जैसे ही फैक्ट्री स्टार्ट हुई उसकी मई जून में सडनली बल्क डील्स, ये वो, स्टॉक गॉट री रेटेड। ऑब्वियसली यहाँ से भी अब कभी नेक्स्ट कैपेक्स होगा तो जो होगा। बट देन पॉइंट इज, आई एम श्योर ऐसी कम से कम 150-200 स्टोरीज होंगी। मुझे एक पता है इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल लिया। And there are enough smart people in the system who can anticipate such switches and can probably make some high alpha, purely because the street is not ready to accept yet. राइट संदीप। Hmm. सो संदीप, एक दो क्वेश्चंस ये भी हैं कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एक ऐसा सेक्टर बोलो या उसको एक थीम बोलो कि जो अच्छा करेगी, उसके अलावा भी दो तीन ऐसी थीम जो आपको लग रहा है कि दैट शुड डू गुड। यार अब सब सब पॉपुलर थीम है, ऑलरेडी ओवरहीटेड है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच ऑफ इट इज इन प्राइस, हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट टू एग्जीक्यूशन। तो सबको ही मतलब इंडिया में पता है, रेलवे में वास्तव में काफी काम हो रहा है, डिफेंस में वास्तव में काफी काम हो रहा है, रिन्यूएबल्स में काफी काम हो रहा है, ट्रांसमिशन में काफी काम हो रहा है, ठीक है। और ये वाली थीम ऑलरेडी कोविड के समय काफी हीट अप थी। बीच में थोड़ा सा स्लम्प आया था, फिर से आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज स्टॉक्स, डीएसएल, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, बेसिकली ब्रोकर्स, एएमसीज एक्सेट्रा, तो वो यार वेल प्राइस्ड इन है। मतलब अब उसमें कोई ऐसी ऐसी थीम नहीं है कि जिसमें आप बोलो कि यार बहुत है। और बहुत नैरो थीम में जाओगे तो उसमें रिस्क रिवार्ड दोनों ही काफी डिफरेंट स्टाइल के हो सकते हैं। तो
अनलेस आपकी ग्राउंड लेवल स्कटलबट बहुत स्ट्रांग है या फिर आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उस नैरो थीम की, तब तो ठीक है। वरना ये जो ब्रॉड थीम्स हैं उसमें यही सब चल रहे हैं, मतलब रिन्यूएबल में काफी काम होगा, उतना ही कैपिटल लॉस होगा, उतनी ही कंपनियां भी डूबेंगी, बट काम तो काफी ज्यादा हो रहा है। तो इन सब थीम्स को पकड़ने का दूसरा तरीका एंसिलरीज के भी थ्रू होता है कि हर जगह जाके देखो कि इसमें कौन सा सर्विसेज देके निकल ले रहा है और कौन एसेट रन कर रहा है। जो एसेट वगैरह रन कर रहा है या जो बहुत ज्यादा मेजर कैपेक्स कर रहा है उसको डिसरप्ट होने के काफी चांसेस रहते हैं। जो बंदा मेले में आकर के बस अपनी सर्विसेज देके पैसे देके निकल जा रहा है, उसकी बैलेंस शीट भी बन जाएगी, उसकी वेल्थ भी बन जाएगी। तो दो दो चीज जरूर देखिएगा कि किसी भी बिग थीम में कोशिश करिए कि एसेट लाइट चीजें पकड़ने की, और दूसरा लेवल 2 लेवल 3 जिसको बोलते हैं ना कोरिलरीज, नॉट द मेन थीम, कि उसके जो बेनिफिशरीज क्या है। तो वो रिलेटिवली सेफर होती है, चीपर प्राइस में मिलेंगी, रिटर्न्स उतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन एक बड़ी थीम को खेलने का वो ज्यादा आसान तरीका होता है। I mean, that is one reason I picked so many industrial logistics companies, purely because I don't have guts to buy cement companies at 80% or renewable at 120. I'll rather buy companies which are doing industrial logistics for them, these kind of companies. And if I can get at still at 15, 20 times. राइट, वी हैव एडेड वन और टू स्पीकर्स। तो पहले निकेश भाई आपके एंड पे कुछ इनपुट हो या क्वेश्चन हो, फिर एल्विश और एसके के पास आते हैं। ओके, एल्विश आप अनम्यूट करके बताएं। Hello, am I audible? हाँ बोलो यार। Thank you, Prince Five for letting me in. Actually, I put my question in the comment as well. That what what would be the sort of projected impact of this upcoming major macro events like U.S. federal commentary, election, recessionary fear, and so on? If anyone could elaborate on that based on their experiences. Thank you. एल्विस को बात करने में काफी अच्छा लगता है, बट अगर मैं मतलब ओपनिंग रिमार्क या ओपनिंग एडवाइस तो खैर किसी को क्या पता, बट मेरे जो अपना पर्सनल जजमेंट है, we are better off ignoring those things because none of those challenges are multi-year structural deficiencies. All those are solvable gyrations of a macroeconomic problem. सो चाहे वो ये इन ट्रेड अनवाइंड हो या फिर एक मेजर डिसलोकेशन बिटवीन लेट्स से जापान या यूएस या फिर बाकी कंट्रीज का हो, shouldn't bother us. I mean, incrementally few things here and there. जब वो न्यूज होंगी तो निफ्टी 2 बार गिर जाएगा 500,000 पॉइंट, फिर वो ऊपर आ जाएगा। आप सिंपली कंपनी पकड़ के उसकी अर्निंग पे फोकस करते रहिए, डोमेस्टिक सेंट्रिक जो है स्पेशली, जो कि ग्लोबली अलाइंड नहीं है, यू विल बी मच बेटर। I mean, obviously, we all should always read all the time. We should never ignore these events. But all I'm saying is we don't try to over engineer and factor in every possible challenge into our investment decisions also. So if you have taken a 6-12 months kind of a constructive view on certain stocks, these events will probably you will not even remember in January. And in fact, so many other things can happen. The one which you and I can think of right now are unlikely to bother us. Okay. Yes. Thank you for clarification. Actually, my thought process was that if some correction is coming, that just gives us an यार opportunity. बहुत पॉपुलर है वो, तो अभी मीम भी बन गया है उसका कि करेक्शन में लोगों का करेक्शन के वेट में लोगों का ज्यादा लॉस हुआ है बजाय करेक्शन में। Yes. And थैंक्स। again I'm not saying buy at any level and buy up and all that. I'm saying जो भी आपकी सेविंग आ रही है उसको अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से सिस्टमेटिकली करते जाइए। अगेन वेरी क्लियर सेज टाइम इन मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। सो जितना एसके भी यू कैन, या हाँ एसके जितनी यू भी कैन। सॉरी प्लीज। जी नमस्कार सर, सन्नी कुमार सर। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है सर। जैसे एलटीसीजी और एसटीसीजी में मेरे को डाउट है, अभी मैं नया नया मार्केट में हूँ। जैसे मैंने स्टॉक जो आज खरीदा, मान लीजिए 1 नवंबर को खरीदा और अगले 1 दिसंबर को तो एलटीसीजी हो जाएगा, बट मैं अगर 1 नवंबर के बाद एवरेज कर रहा हूँ, कुछ दिसंबर में लिया फिर जनवरी में लिया, देन फिर क्या 1 दिसंबर को ही एलटीसीजी मेरा लगेगा या वो कैसे काम करता है?
एसके यार, जिस दिन जो क्वांटिटी बाई करोगे ना, उससे 1 साल या उससे ज्यादा होगा तो उस पे लॉन्ग टर्म लगेगा। जो आप फ्रेश एडिशन कर रहे हो, उस स्टेट से शुरू होगा। संदीप भाई। तो बेसिकली इसका क्विक वर्ड है फीफो, जो कि सप्लाई चेन में भी काफी रेगुलर यूज होता है, इन्वेंट्री वगैरह मैनेजमेंट में। तो स्टॉक में भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपने जो पहले दिन 10 यूनिट खरीदी 1 नवंबर को, वो बेसिकली अगले 1 नवंबर, नॉट 1 दिसंबर, 1 नवंबर को वो एलटीसीजी में काउंट हो जाएगी। ठीक है। फिर आपने 15 जनवरी को खरीदा तो उतने यूनिट अगले 15 जनवरी को एलटीसीजी में काउंट होंगे, उसके पहले बेचोगे तो आपको एसटीसीजी लगेगा। तो एक सिंगल स्टॉक से कोई मतलब नहीं है, आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी है किस डेट में, हर हर परचेज आइसोलेशन में इवेलुएट होती है, नॉट एज एन ओनरशिप ऑफ ए सिंगल स्टॉक। ओके सर, थैंक यू सर। लियाकत, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। Hi, sirs. Good evening. I would like to know your views on drone sector in India in terms of growth development, especially SME drone companies. How you see the future development and opportunities and stock price, of course. लियाकत, मैं कुछ अपना दे दे रहा हूँ, बाकी एनी अदर स्पीकर सर। मैंने ना उस सेक्टर को इतने ध्यान से पढ़ा है, ना मैंने उस सेक्टर की कंपनीज को इतने ध्यान से पढ़ा है कि मैं आपको एक बढ़िया आंसर दे पाऊँ, तो आई श्योरली स्किप इट। इंसिडेंटली मेरी एक डिफेंस की काफी बड़ी होल्डिंग है, सोलर इंडस्ट्रीज, एंड दे आर डूइंग सम गुड वर्क ऑन कॉम्बैट ड्रोन्स, बट दैट्स नॉट एन एसमी प्ले। तो उससे मेरा छोटा सा एक्सपोजर है, बट दैट इज इंसिडेंटल। आई डेंट बाय इट एज अ ड्रोन कंपनी, आई बॉट इट एज मोर लाइक a solid promoter doing solid things. Incidentally, he got into drones. So, and that's my long-term portfolio, so I don't even see what company does and what results and what price. But back to other speakers if anyone has better answer. Actually, I was going through the con call of a drone destination. If we do the maths, uh, as in terms of revenue and also the bottom line, it seems like a huge potential unfolding. But maybe I'm not hearing much discussions, especially in spaces. So I was just curious, how the people are following this. थीम चलती है, 6-9 महीने पहले ड्रोन ही ड्रोन चल रहा था ट्विटर में, आएगा कभी फिर से ड्रोन का समय? सेबी भी आ रही है ड्रोन लेके, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर नहीं लगाएगी। नहीं और नहीं, प्रिंस 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 अरे उसको इतना क्रिटिकल नहीं करते हैं। बट ड्रोन पे काफी हुआ था कंटेंट, अगर आप ट्विटर पे सर्च करोगे। आई हैव ए फीलिंग कि 9 से 12 महीने पहले ना, निकेश वी आर राइट, 9 से 12 महीने पहले काफी ड्रोन का डिस्कशन होता था। Yes. तो आप उस डिस्कशन को इनफैक्ट ट्रैक करिए, उन मैसेजेस को ट्रैक करिए वर्सेस परफॉर्मेंस ट्रैक करिए, दैट्स आल्सो गुड एक्सरसाइज। Thank you, sir. सबसे रिस्की वर्ड जानते हैं मार्केट में क्या है सर? पोटेंशियल। तो इसको बड़े ध्यान से सुना करिए। जो भी पोटेंशियल तो किसी भी चीज का है ना, तो पोटेंशियल ऑब्वियसली है, बट कौन सी कितना उस सेक्टर में एंट्री बैरियर्स हैं, शुरू में कैपिटल डिस्ट्रक्शन होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उसके अंदर कौन सी एफिशिएंट कंपनीज हैं, किसके पास बेटर टेक्नोलॉजीज है, किसके पास प्रोडक्ट अप्रूवल्स हैं। दैट्स ए बिग बिग। और बाय द वे बहुत काम हो रहा है ड्रोन में, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, बट वो इतना कर्सरी पता है, आप भी गूगल करोगे 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, मैं आपको क्या उसका आंसर दूं। ठीक है, मतलब एग्री ड्रोन है, डिफेंस का है, सब जगह काम तो हो ही रहा है, बट वो जिस पेस पे हो रहा है वर्सेस जो प्राइस है, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, दैट इज द रीजन मैंने उस पर नहीं किया। लेकिन मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोलना चाहता था, इसलिए मैं स्किप कर रहा था। I agree, sir. When we look at the PEs and all, as it's an नहीं, पी emerging. मीन्स नथिंग, पी मीन्स नथिंग यार। 150 पी में अगर स्टॉक ने 300 गुना 3 टाइम्स कर दिया, तो अगली बार वो 35 पे आ जाएगा, राइट? बात उसकी नहीं है, बट हाउ कॉन्फिडेंट वी आर, वन दैट इट विल डू वन टाइम, एंड सेकेंड इट विल सस्टेन इट। जो एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री होती है ना, वहां पे एक बार प्रॉफिट आ भी जाए, दूसरे साल टूट जाएगा, फिर क्या करोगे? ये मेरा सोचना है। बट इसी बीच में कोई एक ऐसी कंपनी आएगी जो एक्सेप्शनल काम करके जाएगी और मेजर वेल्थ क्रिएट करेगी। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रोन में कोई विनर नहीं होगा, बट जब तक मुझे वो क्लैरिटी नहीं है, तो एज ए स्मॉल इन्वेस्टर आई फाइंड इट वेरी ट्रबलिंग फ्रैंकली, कि या तो इतनी एक्सपर्टीज हो, कंपनी को बहुत क्लोज क्वार्टर से देख रहे हो और समझ पाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको इंक्रीमेंटली। और प्रॉब्लम क्या है कि
इस तरह के सेक्टर्स में ना बातें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या इसमें एमबीए पीपीटी वाली बातें हैं, क्या रियलिटी वाली हैं, क्या पोटेंशियल वाली हैं। तो उसको एनालाइज करना बहुत टफ है। आप एक नॉर्मल सेक्टर में जाओगे तो बड़ी नॉर्मल सी बातें होती हैं, तो उसको एनालाइज करना बहुत आसान है। आप कल 15 अगस्त को जो मोदी जी बोलेंगे उसको सोच करके हमने ये मान लिया कि यही इंडिया है, तो फिर तो अरे वो बस स्पीच के लिए होता है भाई। इंडिया 16 अगस्त और 14 अगस्त को देखने का होता है, 15 अगस्त को बस चेस्ट थम्पिंग होती है, राइट। तो उस तरीके की कॉन कॉल्स या उस तरीके की पीपीटीज प्रोजेक्शंस जो कि बड़ी बातें हो रही हैं, विच इज गुड, बट पॉइंट इज हाउ मच ऑफ एग्जीक्यूशन। और ड्रोन के नाम पे आप मुझे बताओ, मैं वैसे कंट्रोल कर रहा था, बस चालू हो गया फिर से, मैं हैबिचुअल हूँ। असेंबली हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है कि उसकी कोई टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। आप ऐसे सोचो ना कि आपको ड्रोन बेचने वाले भी तो आपको आपके सिटी में मिल जाएंगे। चाइना से माल ला करके असेंबल करके आगे बेच रहे हैं। इज दैट रियली अ बिजनेस? आई मीन दे माइट मेक मनी फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर एनी बिग प्लेयर टू जस्ट रिप्लेस देम? तो अगेन आई एम नॉट सेइंग एवरी ड्रोन कंपनी इज डूइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग बहुत अंदर जा करके कैपेबिलिटीज समझने की कोशिश करिए और देखिए कि वो कितनी स्केलेबल है और कितनी सस्टेनेबल है और कितनी इररिप्लेसेबल है। तभी तो वो कंपनी सर्वाइव करेगी ना। Right. Right. Thanks, Priyakat. So, Thank you. Thank you. Nikesh, we have been waiting for you if you have anything on your part. Otherwise, I just wanted to maybe like I have this doubt in my mind about that. So basically, so many events happen this last few months, as you were mentioning. So इलेक्शन बजट वाला, फिर उसके बाद ये हिडनबर्ग, और सबसे मेजर जो मुझे लगा कि ये बांग्लादेश वाला। और मैं उस टाइम मुझे लग रहा था कि यार लाइक इट गोना बी, क्योंकि नेबरहुड में हो रहा है और काफी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक तगड़ा, एक काफी वो आएगा, तो आया ही नहीं। तो अब मुझे मैं आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड अबाउट द मार्केट। नॉट कंफ्यूज, आई लाइक सो वन टेक इज दैट कि हमारे 10 साल में इतने तगड़े फंडामेंटल चेंज हुए हैं यहाँ, ठीक है। और जियो पॉलिटिक्स तो पक्के लेवल से काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि बैक इन 10-15 ईयर्स बैक वी यूज टू हियर कि भाई आज यहाँ अटैक हो गया, बॉम्बे में अटैक, दिल्ली में अटैक हो गया, तो वो अभी सुनने को नहीं मिलता। और उस टाइम दोज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स यूज टू बी शेक दी FIIs और FDI sentiments. So those things are not happening, but even these events are like not kind of markets getting immune to those events. But similar same things are happening in US also, like market is like gradually increasing. So maybe like some kind of like, so my doubt is like so are we have like sound fundamentals and these events are not causing any problem, and yeah, so all right. to Sandeep. प्रिंस, मेरे ख्याल से सॉरी निकेश, वाज दैट अ क्वेश्चन और स्टेटमेंट? सॉरी, आई डिडंट फॉलो। No, I have like it's a question. Like for example, so question in a sense ki like because because let me put in a question in a one line. So these events are not causing any any big downfall to the market. So can we say that we are like very fundamentally strong? No, Macro. I mean not that way. So apparently peace in world, जो हमने जब से हम पैदा हुए हमने देखा ना, हमारे इराक वार हुआ, फिर एक अफगानिस्तान का आइसोलेशन में हो गया, बट ब्रॉडली वर्ल्ड हैज बीन यूनिपोलर। सो वी हैव बिकम ट्यून टू रियलाइज कि दुनिया में हमेशा पीस रहेगी, बट दैट्स नॉट ट्रू। व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 25-30 years वाज मोर ऑफ एन एक्सेप्शन देन ए नॉर्म। आप किसी भी मोमेंट ऑफ हिस्ट्री में चले जाएंगे, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बिग वार्स वाज ऑलवेज द नॉर्म। तो वर्ल्ड उसमें जाएगा तो डिफेंस के एक्सपेंडिचर तो बढ़ेंगे, but nothing will be like a total break, and if that happens, you can't plan for it, right? अब इंडिया में किसी ने न्यूक्लियर बम मार ही दिया तो फिर मार ही दिया, फिर निफ्टी 2000 गया, जब जिंदा ही नहीं तो फर्क क्या पड़ता है? तो you don't plan for such events, but outside of that, as long as you have a stable border, capable, strong country, these things on the border। अब देखो ना कि ईरान हो गया, साथ में इजराइल पैलेस्टाइन हो गया, चल ही रहा है, ठीक है, इजराइल हमास, और फिर भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और इनफैक्ट एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। तो निकेश आप गूगल करो, जो सबसे ज्यादा वेल्थ फॉर्मेशन हमेशा वार पीरियड में हुआ है, जो लोग वार में इन्वॉल्व नहीं थे। तो यूएस बना ही इसलिए था वर्ल्ड वार 1 और 2 की वजह से, बिकॉज इट हैज पीसफुल नेबर्स एंड ऑल।
तो अगर as long as it doesn't impact inside, what is happening in at the neighborhood, how does it matter to us? Great insight. I mean, that's the thing. That's the नहीं beauty नहीं, of listening यूएस to का you. तो नोन है ना, मतलब यूएस की स्ट्रेंथ ही इसी बात से है ना कि इट इज ए नहीं कॉन्टिनेंट इन सुना मैंने इटसेल्फ। भी था, पर आपने वो एक वन लाइन में जो समराइज किया, दैट्स नहीं तो रियली ब्यूटीफुल। 1930s का आप देखो ना, रूजवेल्ट प्लान, पूरा जो उनका केनीजियन इकोनॉमिक्स है वो क्या था बेसिकली, ऑल दे वर डूइंग इज सप्लाइंग टू यूरोप, और फिर उसका रिपेट्रिएशन भी मांगा पूरा। एक लियाकत अली की बहुत ही फेमस लॉर्ड ऑफ फाइनेंस करके एक बुक है 1920s की, जो ग्रेट इन्फ्लेशन था जर्मनी का, वहां से लेके वो ऑलमोस्ट 1944 तक ब्रेटन वुड तक जाती है। So try reading it, Nikesh. You'll absolutely love that book. I mean, there are so many books on that topic, but that's a good summary from central bankers' perspective. Lord of Finance. सो दैट बेसिकली क्लियर, लाइक इन माय हेड, लाइक जो थोड़ा सा मिसिंग ब्लॉक था। तो बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का ने काफी बेनिफिट बेनिफिट हुआ है उठाया। ना यार हमारा, हाँ हमको हाँ जी। $20 सस्ते पे मिल रहा है, जिसमें से हमने $5 जनता को दे दिया, $5 गवर्नमेंट के ऑफर में आ गया, 5 रिलायंस को मिल गया, एसआर को मिल गया। ठीक है, तो हमारा क्या, बाकी कौन इन्फ्लेशन में मर रही थी और हम हम बिल्कुल एंजॉय कर सर, रहे थे। हम बिल्कुल उस चीज को रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, आई थिंक हर्षुल वांट्स टू से समथिंग ऑन द ड्रोन। प्रिंस, कैन यू मेक हिम स्पीकर प्लीज? You can send a request, I'll approve. हर्षुल, Meanwhile, Nirmit has joined as a speaker. So, any question or small input on your part, Nirmit? No, we'll finish that drone discussion and then we can have something else. नो निर्मित, यू कैन स्टार्ट। जब तक हर्षुल आता है, वी कैन ऑलवेज स्विच बैक टू ड्रोन। Acha, see, I just wanted to understand anyone's viewpoint, and especially Sandeep ji aapka, कि you're saying you believe that fundamentally India is strong as of now. उस पे क्या डाउट है निर्मित? इफ यू आर सेइंग दैट वी आर ओवर प्राइस्ड फॉर द फंडामेंटल्स, देन दैट्स अ टॉपिक। बट फंडामेंटल्स में आपको क्या इंक्रीमेंटल? एक्चुअली लेट्स स्टार्ट विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? हमारे Yeah, जो but फॉरेस्ट, if the inflation, if you see from healthcare to housing to your education has been increasing, and everything has been increasing. The only thing that's keeping the market alive is okay, मेरा सबका SIP जा रहा है and these boomers यार and Gen Zs are नहीं, putting निर्मित in their मार्केट को money, so साइड में रख market देते is हैं। not falling, अरे निर्मित right? सुनो, मार्केट को But साइड रख देते हैं, 15,000 हाँ हो या 35,000 हो। लेट्स ओनली ठीक है, फोकस ऑन मैक्रो, मैक्रो स्टेबिलिटी, राइट? फंडामेंटल, या तो इकोनॉमी क्या पेनलाइज करोगे या तो कंपनीज okay, की करोगे। ठीक है, तो अब इकोनॉमी पे थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। okay, आप सिंपली जाओ, कैड परसेंटेज देखो, इनफैक्ट हम स्विच भी कर जाते हैं पॉजिटिव में, और इट हैज बीन एट डिकेडल लोस, नंबर 1। नंबर 2 क्या है ना, ये सारा चीज में ना परसेप्शन की कभी लड़ाई लड़नी ही नहीं चाहिए। जहां पे आपके आंख के सामने डेटा दिख रहा है और मार्केट के रिएक्शन, सी टॉक्स आर चीप, मनी इज नॉट। अगर आज इंडिया की करेंसी 83-84 पे 2 साल से खड़ी हुई है, ठीक है, एफएक्स वोलेटिलिटी एट डिकेडल लोज, इंडिया की जो कॉस्ट ऑफ फंड है वर्सेस ग्लोबल इकोनॉमी का जो कॉस्ट ऑफ फंड का डिफरेंशियल, जिसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी, राइट? तो हम फ्रेजाइल 5 थे 2013 में, और आज हम ग्लोबली मोस्ट अनकोरिलेटेड मार्केट हैं एमंग द मेजर इकोनॉमीज। agreed. और हाँ, तो वो अंडरलाइंग स्टेबिलिटी की वजह से ही आ रहा है। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग मेरे को राइट विंगर और मोदी सपोर्टर बोलने लगोगे, बट द रियलिटी इज कि बहुत ध्यान से निर्मित 50 घंटे, और हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, सो वी डोंट नीड टू गेट डाउन इनटू दोज आर्गुमेंट कि तुम आके देखो इतनी गरीबी है, इतनी अमीरी है। वो सी मतलब रिटोरिक्स में नहीं जाने का है, डेटा इंक्रीमेंटल एनालिसिस करना है। ठीक है, तो आप जाके कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक, और उसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी का थिंक टैंक रहा है हमेशा से, इट इज वेरी सिमिलर टू रिपब्लिकन थिंक टैंक और मिस्टर जगदीश भागवती, जिसको बोलते हैं द गाय हु डिड नेवर गॉट द नोबेल, इनफैक्ट ही फेल ऑफ विथ मोदी इन 2018। No, so let's हाँ say in a हाँ hypothetical situation, हाँ। if Congress had come, would that growth story of India, macro, would tumble down and things would have been different तो from a अगेन, Indian बिना growth पॉलिटिक्स story? में गए उसको क्वेश्चन को आंसर करना बहुत टफ है, बट Correct. मुझे लगता है कि वो अर्डरली नहीं होता ट्रांजिशन। अभी हम हाँ इतने ज्यादा मतलब ओपिनियटेड हो चुके हैं एज ए कंट्री लेवल, बट हाँ एज्यूमिंग अर्डरली हो जाता, जो इंडिया में हमेशा हुआ है। हाँ तो ओरिजिनल बिजनेस रिफॉर्मर कांग्रेस ही है, बीजेपी नहीं है।
Only difference is BJP current government is very autocratic. सो इन ए कंट्री लाइक इंडिया जहां पे यूजुअल रेफरेंस आप हर समय देखो, चाहे 90s में, मुझे तो एटलीस्ट याद है, यहाँ पे लोग बता सकते हैं, कोई भी बूढ़े दादा या उनसे मिलो, वो हमेशा उनका एक बहुत ही फनी सा स्टेटमेंट रहता था, इससे बढ़िया तो अंग्रेजी थे, कितना बढ़िया ब्रिज बना के गए, हमें तो कोई तानाशाह की जरूरत है. दिस यूज टू बी लाइक ए वेरी रेगुलर Correct, कमेंट. correct. क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा डिस्कशन पैरालिसिस में फंसते हैं. जो कांग्रेस के सबसे बड़े थिंक टैंक में से सो कॉल्ड अमर सेन है, उन्होंने Yeah. खुद लिखा है टॉकेटिव इंडियंस. हम बस बातें करते हैं यार. तो इस कंट्री में जो काम करने के लिए आधार के कॉन्सेप्ट किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया. इम्प्लीमेंट किसने किया? बीजेपी ने कर दिया. जीएसटी का मोदी खुद विरोध कर रहे थे. इम्प्लीमेंट किसने किया? इन्होंने किया. एसटीसीजी हटाया किसने? चिदम्बरम ने. वापस कौन लाया? सारी बिटर मेडिसिन तो बीजेपी ही पिला रही है ना, अपने वोटर को Agree. पिला रही है, और तो और. सो दिस इज द मोस्ट सोशलिस्ट राइट विंगर गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड राइट नाउ. आप देखो ना, अपने वोटर को से पैसे ले करके अपने नॉन वोटर को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जस्ट टू इंक्रीज द बेस. आप एक Okay. ऐसे देखो, अनफॉर्चुनेट पार्ट है, एंड सॉरी, आई यूजुअली वेरी स्ट्रांगली रिफ्रेन फ्रॉम पॉलिटिक्स. क्योंकि अभी कोई नीचे ना कोई आ जाएगा जो बहुत ही सेंटी होगा और वो मुझे याद दिलाएगा कि 2002 में क्या हुआ. वो सब पे नहीं जानने का है. आप सिंपल से So, एक बात सोचो कि हाँ, मिस्टर मनमोहन सिंह वॉज इन थिक ऑफ अफेयर्स फॉर गुड 25 years. He was so, either RBI governor, our finance minister, our planning commission and this thing. और उनसे वन ऑफ, मतलब उनके क्या बोलते हैं ना, 1/10 इंटेलिजेंट का भी कोई बंदा अभी एडमिनिस्ट्रेशन में पैदा नहीं हुआ होगा पिछले 25 साल में. तो okay. इंटेलिजेंस या इंटेंट की तो कोई उस पर डिबेट कर ही नहीं सकता, उनकी जेन्युइननेस पे. बट देन पॉइंट इज कि इसी कंट्री में शारदा भी हुआ, सहारा भी हुआ, और होता ही रहा. छोटे छोटे सिटीज में जाइए. मैं अपनी मेट्स के एग्जाम्पल, ये मैंने कई बार स्पेसेस में बोला है, मेरे गांव में मैं आई कम फ्रॉम ए वेरी रूरल बैकग्राउंड, एग्रेरियन कम्युनिटी से भी हूँ, और अभी भी मेरे पूरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, एवरीवन लिव्स इन विलेजेस. वहां पे वो स्कीम के पैसे जैम के अभी पहुंचने लगे हैं यार. और अब तो ये जो लेफ्ट कॉकस है वो भी दबे स्वर में एडमिट कर रहा है. वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, दे आर कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट जो गवर्नमेंट का सेटअप है जैम का, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनफैक्ट उसके बगैर इंडिया में पॉसिबल ही नहीं था यार. मतलब देयर इज नो Correct, वे वी कैन डू इट विदाउट दैट. तो correct, वो correct. सारी चीजें ना कलेक्टिवली फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं. आप उसको मैक्रो का एक एक डेटा, जितने भी टॉप 5 इंडिकेटर्स होते हैं ना, फॉरेक्स रिजर्व एज ए परसेंटेज ऑफ ट्रेड, ठीक है. दूसरा आप एफएक्स वोलेटिलिटी. तीसरा इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन पे रिटोरिक्स में मत जाइए कि महुआ मित्रा क्या कह रही है और वो क्या कह रहे हैं. आप सिंपली नंबर्स उठाइए, ठीक है. और फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए, वो हमारी मजबूरी थी. 91 रिफॉर्म्स भी हमारी मजबूरी थी, और सीतारमन का कोविड में कंस्ट्रेंट रहना भी हमारी मजबूरी थी. तो हमने लोगों से झूठ बोल दिया. मुझे आज भी याद है, सीएनबीसी में 12 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ था. Correct. एंड आई वाज स्टन्ड कि हाउ कैन सीएनबीसी और मनी कंट्रोल, और इकोनॉमिक टाइम्स में इनफैक्ट आया था, इट वाज इन 22 जुलाई में, कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ 12 या 16 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया. क्यों? क्योंकि बहुत प्रेशर था कि यार सिंगापुर 1% कर रहा है, रसिया ये कर रहा है, वो ये इतना कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हमारे पास पैसे ही नहीं थे, हम क्या करेंगे. तो हमने मूर्ख बना दिया, और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी मूर्ख बना दिया हमें. उसमें आप ध्यान से देखो तो वो आज भी मुझे याद है, कुछ मतलब कुछ डिटेल्स मिस हो रहा होगा और आप सब लोग अप्रिशिएट करोगे. बैलेंस शीट ट्रांसफर थे वो, दैट वाज नॉट पीनल आइटम्स, जिसको फाइनेंस में बोलते हैं ना. तो उसने क्या Okay. बोला, उसमें क्या बोला गया था कि आप अपने ईपीएफओ का पैसा हमसे थोड़ा पहले ले लीजिए, ठीक है. आप अपने टैक्स का पैसा थोड़े दिन बाद में दे दीजिए. तो अपनी Okay. वेल्थ थोड़े से पहले ले लीजिए और अपने एक्सपेंसेस थोड़े से डिफर कर दीजिए. इज दैट ए पैकेज? ऑब्वियसली नॉट, राइट. They're तो just हमने playing around खर्चा in ही the नहीं books. किया, हमने तो और उल्टा ले लिया लोगों से पैसा. तो वो सारी चीजों की जो नेट इम्पैक्ट आया है कि 23-24 में वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट बैलेंस शीट एट अ कंट्री लेवल. I mean, if we shift this conversation from politics to technology, and the way technology is moving ahead, and the workforce and the youth population that's there in India, do you think there'll be a mismatch? I mean, going forward 10 years down the line, I mean, would we be able to generate that kind of an employment? Would there be some kind of different altogether situation where things will not be able to sustain each other because So AI would have taken over, or
some kind of other things would have taken away the kind of labor that is required. Because I was recently seeing some of these USA companies and all that, the way they are going in form of robotic manufacturing and then 3D printing and all that. And let's say 10 years down the line, also this technology comes through to India. I hope it is faster, but then it will create a lot of mismatch between the how many people can be actually employed or not. And I mean, it can be even agriculture. Agriculture में भी इतने kind of robots आ गए हैं and all that. If you go look at Israel and all that, the way these guys are innovating, it's at a breakneck speed. So just trying to see how much India बहुत can बहुत बहुत wall बड़ा this off. टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और आपने टॉपिक टोटली स्विच कर दिया. बट लेट मी एड 4-5 Yeah, I didn't पॉइंट्स want to make it क्विक. more नो, political दैट्स because ओके, दैट्स otherwise ओके. you'll be आई going मीन in a इट्स अ different गुड direction. टॉपिक. दैट्स अ गुड टॉपिक. मैं 3-4-5 डेटा पॉइंट्स बोल दे रहा हूँ, और ये मैं कई स्पेसेस में पास्ट में बोल चुका हूँ शायद, या एटलीस्ट Okay. मैंने ट्वीट्स वगैरह जरूर मारी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ल्यूडाइट मूवमेंट्स के बारे में पता होगा. तो जब यूके में सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, या मशीन्स बेसिकली स्टार्टेड रिप्लेसिंग पीपल, तो लोग फैक्ट्रीज को आग लगा देते थे. तो उस मूवमेंट का नाम था ल्यूडाइट मूवमेंट, बिकॉज बेसिकली पीपल सेड कि अगर फैक्ट्री आ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, राइट. फास्ट फॉरवर्ड 1960s-70s में मैथमेटिक्स के टीचर्स ने हड़ताल कर दी थी कि कैलकुलेटर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे. कैलकुलेटर, नॉट इवन कंप्यूटर्स, राइट. इंडिया में आपको पता ही है कि कैसे हमने कंप्यूटर आईबीएम और को भगाया था रातों रात. तभी वहां से ही टीसीएस बनी है. टीसीएस बेसिकली रिप्लेस्ड आईबीएम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. Correct. तो ये हर समय लोगों के दिमाग में डर रहता है कि कंप्यूटर आएगा. पूरे तो इंडिया में पॉलिटिक्स भी हुई है. आप इसको रिवर्स सोचिए, क्या दुनिया में ऐसा कोई सोल्यूशन पॉसिबल है, पॉलिटिकल सोल्यूशन और सोशल सोल्यूशन, कि केवल 3% लोग काम करेंगे, 1% लोग वेल्थ रहेंगे. वो वेल्थ वाला तो पॉसिबल है, बट वर्क वाला. और बाकी 97% खाली बैठेंगे, बोलेंगे हम अनएम्प्लॉयड है, क्या करें, एआई आ गया जी. वो कहेगा कहाँ है एआई, इसका सर्वर पता करो, तोड़ के आ जाते हैं शाम को. सो वर्ल्ड कैन नॉट हैव ए डिसफंक्शनल सोल्यूशन एट दिस लेवल. उसके अंदर जायरेशन हमेशा होंगे. जिसने टाइप राइटिंग से स्विच नहीं किया कंप्यूटर्स में, तो ऑब्वियसली ऑब्सोल्यूट हो गया. एसटीडी बूथ ऑब्सोल्यूट हो गया, बिजनेसेस ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, पब्लिक ऑब्सोल्यूट हो जाएगी. उस तरह के डिसरप्शन से पार्ट, कोई भी टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग. व्हाई? बिकॉज व्हाट इज अलाउड इन द वर्ल्ड इज डिसाइडेड बाय पीपल. सो एज लॉन्ग एज पीपल हैव द कैपेबिलिटी टू ब्रेक दोज कंप्यूटर्स, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन हैपन. जो हम बोल रहे हैं ना कि मतलब अगर दुनिया में वर्ल्ड में वर्कफोर्स, कॉर्पोरेट वर्कफोर्स इस समय लेट से 7-8% ऑफ वर्ल्ड होगी, कैन इट कम डाउन टू 3%, 2%? माई स्ट्रॉन्ग हंच आंसर, ऑब्वियसली एनीबडी हु नोज व्हाट विल हैपन, कि ऐसा नहीं हो सकता है. कंटिन्यूसली उसको चेंज करते हैं. दूसरा क्या है कि बहुत ही फेमस ऐसे है कीन्स का. उन्होंने 1930s या मोस्ट लाइकली 40s में, या 40s में ही लिखा होगा, पोस्ट वर्ल्ड वार, जिसमें उन्होंने कुछ प्रिडिक्ट किया था कि अगले 20 से 30 साल में कुछ हमारा 40 आवर्स वर्क वीक या 3 days वाला टाइप का सेटअप में दुनिया Correct. चली जाएगी बिकॉज ऑफ मशीन्स एंड प्रोडक्टिविटी. बट दैट नेवर हैपेंड. इवन आफ्टर 80 years दैट नेवर हैपेंड. हम आज भी 80 घंटे काम करने को तैयार हैं. यंग बंदे भी काम करने को तैयार है. हम भी तुम लोग भी रात को बैठ के कॉल ले रहे हो, मैं भी घर के बाहर से खड़ा हूँ. क्यों? क्योंकि दैट इज, नो वन कैन स्टॉप ए ह्यूमन फ्रॉम ओवरवर्किंग बिकॉज ऑफ हिज डिजायर्स. And I have a different view that probably a decade later these views will be different. And हाँ, let's see. पॉसिबल है. Yeah. लेट्स सी. Chalo, thank you so much. And please, we can have ठीक है, other श्योर. speakers also. Thank you. प्रिंस, एंड प्रिंस, इट माइट बी वेरी लेट ऑल्सो, सो वी कैन रैप इट ऑल्सो, क्योंकि एंडलेस बातें हैं, मतलब ओपन एंडेड कहीं पे भी जा सकती हैं. बट मे बी 1 or 2 स्पीकर्स एंड देन वी कैन क्लोज. विवेक, कम एज ए स्पीकर इफ यू हैव टाइम. Yeah, Sandeep, I think I am not able to see him, and it's always 15 past 12. I think we can keep the rest of discussion for next time. Would be great. ओके, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन. Thanks, Sandeep, and thanks everyone for joining. और जो first time join कर रहे हैं, they can connect with us on Twitter and as well as YouTube नो नो, handles. विथ यू प्रिंस. मेरे को अनफॉलो कर दो. Then I'm struggling to. I'm only last week I have taken first time my decision that now onwards I will not respond to every DM.
and now onwards I will not respond to every message, because so far I was able to do it purely as a matter of courtesy, but bandwidth wise it is not possible for me. So I'll rather have less number of उसके people connect उसके and उसके good लिए people. क्वेश्चन, उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे ना भाई आपसे, वहां पे नहीं देना तो नहीं वो ठीक है, मतलब फेयर इनफ. मुझे मुझे बहुत ही क्या बोलते लेट हैं, मी लेट ब्रूट मी लगता है कि लेट मी समवन टैग करके आपसे सवाल पूछे और आप उसका जवाब तक ना दो. राइट, द पॉइंट इज कि उसके बाद एंगेजमेंट चालू हो जाता है और उसके बाद इल डिस्कशन चालू हो जाते हैं. इन्फ्लुएंसेस पे तो आप जिंदगी भर लड़ते रहो, उसमें क्या दिक्कत है. राइट, मतलब हु ऑन अर्थ नोज व्हाट विल हैपन. राइट, तो राइट सर. एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस या इन्फ्लुएंसेस में वी कैन ओनली डिबेट अबाउट फैक्ट्स. राइट, उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप मेरा व्यू सुनो, मैं आपका व्यू सुनो, इससे ज्यादा किया जा सकता है. तो अगर वो बेसिक कर्टसी नहीं है, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम में ट्विटर में इसीलिए लगाता हूँ कि एवरेज आईक्यू ऑफ पीपल इन जनरल इज गुड. राइट, सारे पॉलिटिकल हैंडल्स मैंने ब्लॉक किए हुए हैं. तो ये फाइनेंस कम्युनिटी में